اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے پہلی بڑی خبر، غزہ، اسرائیل، حماس، فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل الحمدللہ غزہ کے آس پاس اسرائیلی فوج کو شکست ملی۔ صلاح الدین اسٹریٹ پر گھمسان کی جنگ ہوئی، کئی ہلاکتیں، کئی موتیں ہوئی۔ مجاہدین نے غزہ کو صہیونی اسرائیلی امریکی آتنکوادی فوج کا قبرستان بنا دیا، یعنی زبردست انداز میں اسرائیلی یہودی امریکی آتنکوادی فوجی مارے گئے۔ خیر، اسرائیلی حملے میں جو آتنکوادی حملے اسرائیل کر رہا ہے اس میں گزشتہ کل ایک کینسر اسپتال پورا تباہ ہو گیا۔ القدس کو خالی کرنے کی دھمکی اسرائیل کو دی گئی ہے۔ حماس نے جو یرغمال خواتین ہیں، جن خواتین کو حماس نے کڈنیپ کیا ہے، ان کی ویڈیو حماس نے جاری کی، جس میں قیدیوں نے نیتن یاہو سے، یعنی اسرائیلی وزیر اعظم سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، یعنی اسرائیلی قیدیوں نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا ڈیمانڈ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اسے نفسیاتی پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ خیر، مجاہدین کسی بھی حال میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، حالانکہ اسرائیلی آتنکواد پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ غزہ میڈیا آفس نے گزشتہ کل افسوسناک اعداد و شمار آنکڑے جاری کر دیے، جس میں بتایا کہ اسرائیلی آتنکی فوج ہر کسی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ مسلسل بمباری سے 116 سے زیادہ طبی عملہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ غزہ میڈیا آفس کے مطابق صہیونی آتنکوادی فوجیں وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں اب تک سول ڈیفنس یونٹس کے 18 ارکان اور 35 صحافی، 35 جرنلسٹ بھی مارے جا چکے ہیں، اور اسرائیلی آتنکوادی فوج نے 80 سرکاری عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ غزہ حکام کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی بمباری میں 47 مسجدیں شہید ہو چکی ہیں اور 7 گرجا گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر ریاست مہاراشٹر سے آ رہی ہے کہ مراٹھا ریزرویشن اب پرتشدد ہو چکا ہے۔ ممبران اسمبلی، ایم ایل ایز، ودھایکوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی اور راشٹروادی کانگریس کا دفتر بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں، خاص طور سے مراٹھواڑہ میں جگہ جگہ پرتشدد
मुजाहरे हुए, कई मेंबरान असम्बली के दफातर पर हमले भी किए गए। रियासत भर में कशीदगी का माहौल है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पर गुज़िश्ता कल मराठवाड़ा में बाकायदा बस सर्विस भी पूरी तरीके से बंद रही। मुसाफिरों को बहुत ज़बरदस्त अंदाज में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और मराठा आंदोलन अब इतना ज़बरदस्त पुरतशद्दुद हो गया है कि गुज़िश्ता कल मोदी से लेकर शरद पवार तक जितने भी नेतागण हैं, बड़े बड़े, सबकी तस्वीरें जमीन पर रखी गई और बच्चों ने उन तस्वीरों पर यानी मोदी जी से लेकर तमाम नेताओं के मुंह पर पेशाब किया। यानी मराठा आंदोलन इंतहाई ज्यादा पुरतशद्दुद होता जा रहा है और मराठा आंदोलन से हुकूमत भी हिल गई। शिंदे के मेंबर पार्लियामेंट के बाद अब बीजेपी के एक एमएलए ने भी इस्तीफा दे दिया। बीड़ में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बीड़ जिले में तहरीक की कुछ तस्वीरी झलकियां हैं कि किस तरीके से तोड़ फोड़ हुई है। एनसीपी एमएलए के घर पर पथराव हुआ, नगर परिषद के दफ्तर में आग लगाई गई, प्रकाश सोलंकी के घर पर भी पथराव किया गया और नासिक में मराठा आंदोलनकारियों ने मेंबर पार्लियामेंट हेमंत गोडसे के घर का घेराव करके उनसे भी इस्तीफे का मुतालबा किया है। आइए नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के इल्मी शहर अलीगढ़ की आ रही है। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक एक्स स्टूडेंट, साबिक तालिब इल्म जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है, उनका गजा में उनका पूरा खानदान शहीद हो गया। इजरायली आतंकवादी हमले में मुराद और उनका खानदान मलबे में दब गया था। जख्मी हालत में तालिब इल्म का इलाज जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वीडियो। AMU में शोबे केमिस्ट्री से PhD की डिग्री हासिल करने वाले साबिक तालिब इल्म मुराद का पूरा खानदान हलाक हो गया है। सोशल मीडिया पर हलाक होने वाले उनके खानदान के कुल 17 अफराद बताए जा रहे हैं, जबकि वहीं दूसरी जानिब ये खबरें भी कल से गर्दिश करने लगी है कि इजराइल के आतंकी हमले में मुराद के अलावा खानदान के तमाम अफराद मारे जा चुके हैं और मुराद को मलबे से कई घंटों के बाद रेस्क्यू किया गया है। AMU तलबा रहनुमा हैदर अली ने भी बताया कि उनकी खुद व्हाट्सएप पर मुराद के भाई अब्दुल्ला से बात हुई थी जो मलेशिया में मुकीम है। उनके भाई ने वही बताया था कि मुराद और उनके खानदान वाले इजराइल के हमले में मलबे में दब गए थे, जिसमें मुराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया है। उनका इलाज अस्पताल में जारी है। आइए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में नरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदुस्तानी फौज से मुताल्लिक खुफिया मालूमात पाकिस्तान हैंडलिंग एजेंसी को भेजने के इल्जाम में बीकानेर जिले से एक मुश्तबा जासूस को गिरफ्तार किया गया है। वो सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 लड़कियों के साथ चैट के जरिए हिंदुस्तानी फौज से मुताल्लिक स्ट्रेटजिक अहमियत की मालूमात भेज रहा था। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस ने कहा कि नरेंद्र कुमार जो सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 लड़कियों के साथ चैट के जरिए हिंदुस्तानी फौज से मुताल्लिक स्ट्रेटजिक अहमियत की मालूमात भेजने में मुलविस था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बॉर्डर के करीब वाक़े आनंदगढ़ बीकानेर के रहने वाले नरेंद्र कुमार के खिलाफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID स्पेशल ब्रांच जयपुर के स्पेशल पुलिस स्टेशन में गवर्नमेंट सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कॉमन सिविल कोड, यकसा सिविल कोड, अब इलेक्शन करीब आ रहा है तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बीजेपी चाहेगी कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ मुद्दे और मुसलमानों के खिलाफ भाषण करके भगवा टोले को खुश किया जाए और 2024 के इलेक्शन जीता जाए। तो बड़ी खबर आ रही है कि साबिक जजेस ने यह कहा है कि यकसा सिविल कोड से मुसलमान खौफजदा ना हो, हम हिंदू इस साजिश को नाकाम कर देंगे। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्शन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जानिब से वक्तन फवक्तन यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू उठाया जा रहा है। इस सिलसिले में फोरम फॉर डेमोक्रेसी व कम्युनल एमिटी की जानिब से एक अहम इजलास से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक एक्स जज जस्टिस गोपाल गौड़ा, कर्नाटक हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस नागमोहन दास और साबिक एडवोकेट जनरल रवि वर्मा कुमार ने कहा कि यकसा सिविल कोड
भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के ऐन खिलाफ है, जिसका निफाज मुमकिन नहीं। ये एक कम्युनल नफरती और शैतानी एजेंडा है, हिंदू वोटों को पोलराइज करने और कम्युनिटीज के दरमियान फूट डालने का। लिहाजा अकलियती तबकात मुसलमान बिल्कुल न घबराएं और मायूसी का शिकार ना हो। हम यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की साजिश को हम पर छोड़ें। हम हिंदुओं के पास इस साजिश को नाकाम करने का बेहतर मंत्र है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, तलाक की अफवाहों के बाद आखिर सानिया मिर्जा जो मशहूर टेनिस खिलाड़ी है, भारत की बेटी और पाकिस्तान की बहू है, तो तलाक की अफवाहों के बाद सानिया मिर्जा और शोएब मलिक बेटे की सालगिरह पर इकट्ठे नजर आए। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और साबिक हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को तलाक की अफवाहों के बाद पहली बार बेटे की सालगिरह पर एक साथ देखने पर मद्दाओं ने खुशगवार हैरानी का इजहार करते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान तलाक की अफवाहें 2022 के इख्तिताम से चल रही है। ताहम ताहाल दोनों ने वाज़ेह तौर पर ऐसी खबरों की तरदीद भी नहीं की है और तस्दीक भी नहीं की है। दोनों स्टार्स के दरमियान अलायदगी और तलाक की अफवाहें इब्तदाई तौर पर दिसंबर 2022 में मीडिया में शाये हुई थी। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु से बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि बेंगलुरु में बस स्टैंड के पास एक गैराज में आग लगी और आग इतनी खौफनाक थी कि दर्जन भर बसें जलकर खाक हो गई। बेंगलुरु के वीरभद्र इलाके में बस स्टैंड के पास एक गैरेज में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। उस आग की जद में दर्जनों बसें आ गई। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले एक बस में लगी और फिर देखते ही देखते कई गाड़ियों को इस आग ने अपनी जद में ले लिया। हालांकि आग लगने की वजूहात का अब तक पता नहीं चल सका है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही। आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के 8 बहरिया अफसरों को कतर में, दोहा कतर में फांसी की सजा सुनाई गई इजराइल से जासूसी के इल्जाम में। और जाहिर बात है कि हिंदुस्तानी बहरिया के अफसर है तो ये हिंदुस्तान की बड़ी नाकामी मानी जा रही है और लोग केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार और मोदी पर थूक रहे हैं। लेकिन खैर, इस वक्त मरकजी वजीर खारिजा का बड़ा बयान आया है। एस जयशंकर ने पीर को कतर में सजाए मौत का सामना करने वाले 8 हिंदुस्तानी बहरिया के फौजी एहलकारों के घर वालों से मुलाकात की और ये कहा कि इन 8 एहलकारों की रिहाई के लिए हमारी कोशिशें जारी है। मरकजी वजीर खारिजा की कतर में सजा याफ्ता हिंदुस्तानी बहरिया के अहल खाना से यकीन दहानी सामने आई है। यानी वजीर खारिजा ने उन लोगों के घर वालों से मुलाकात की, 8 अफसरान के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि हिंदुस्तानी हुकूमत, भारतीय गवर्नमेंट उनकी रिहाई के लिए कोशिशें कर रही है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। मेंबरान असेंबली विधायकों की नाअहली का मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की हुकूमत को बीजेपी ने कितने नीच और घटिया तरीके से गिराया था, वो सबको मालूम है। अब विधायकों की नाअहली का मामला सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर गुस्सा हो गई। 29 फरवरी तक फैसले की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए असेंबली स्पीकर को 31 दिसंबर तक फैसला करने का हुक्म सुनाया गया है। एक्चुअल में असेंबली स्पीकर इस मामले में टाल मटोल कर रहे हैं। दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी ही दाल काली है। इसलिए असेंबली स्पीकर दाल में काला करते हुए बाकायदा उस मामले को टाल मटोल कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि 29 फरवरी नहीं 31 दिसंबर तक फैसला आ जाना चाहिए।
यानी बड़ी खबर आ रही है, जहां मराठों का गुस्सा कम करने के लिए खबर आ रही है कि कुंभी सर्टिफिकेट की तकसीम की जा रही है। काबीना की ज़ैली कमेटी ने यह फैसला किया है। रिजर्वेशन के लिए मराठा का महाराष्ट्र भर में जोरदार हंगामा हो रहा है। अब मराठा बिरादरी मुश्तिल हो गई है और उन्होंने कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की है। तो मराठों का गुस्सा कम करने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने काबीना की ज़ैली कमेटी की मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग के बाद वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि रियासती हुकूमत आज से कुंभी सर्टिफिकेट जारी करने का अमल शुरू करेगी। मराठा रिजर्वेशन और जरंगे पाटिल की भूख हड़ताल के सिलसिले में काबीना की ज़ैली कमेटी की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में तफसीली बातचीत की गई। शिंदे कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट हमें सौंपी है। हम इसे कल काबीना की मीटिंग में कबूल करेंगे और इस पर रद्द अमल जाहिर करेंगे। 73 लाख दस्तावेजात की जांच पड़ताल की गई। 11,530 कुंभी रिकॉर्ड मिले। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। कुछ रिकॉर्ड उर्दू में मिले। कमेटी ने 2 माह का वक्त मांगा था। हमने दरखास्त की है वो अपनी हतमी रिपोर्ट जल्द पेश करें। जिनके रिकॉर्ड मिल गए उनके लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी।